Hi everyone, this video is especially for those who are preparing for BPSC. मुझे काफ़ी मैसेज आते हैं टू टेल कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर BPSC और यू मस्ट नो कि BPSC का पैटर्न अब चेंज हो चुका है। तो उस पैटर्न के अकॉर्डिंग कैसे चीज़ों को प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर करना तो एक साइड है, बट एग्ज़ाम में कैसे उन चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 69th BPSC का मेंस होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट ईयर आपको 70th BPSC देखने को मिलेगा। सो उसके लिए आप कैसे प्रिपेयर करो, कैसे प्री को प्रिपेयर करो, कैसे मेंस प्रिपेयर करो, इंटरव्यू की तैयारी कैसे रखो, ओवरऑल आपका मेंटल स्टेट क्या होना चाहिए, इन सारे एस्पेक्ट को अंकिता चौधरी मैम ने कवर किया है। शी हैड सिक्योर्ड रैंक 3 इन 67th BPSC एंड आई होप कि यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग फ्रॉम दिस वीडियो। उसके बाद भी कोई आपके मन में डाउट है देन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। Hello everyone, my name is Ankita Chaudhary and I have got rank 3 in the 67th BPSC examination. Through this video, I would like to share my basic strategy for the preparation. This was my first attempt and I started with BPSC preparation only, like I never prepared for UPSC. So my strategy was very restricted. For the prelims, I just had 3 months to prepare. So I was focused on Ghatna Chakra, Lucent, Ghatna Chakra, the entire series. I read very ardently the history, science one-liners, the polity and geography from IAS PCS Pathshala channel. And sir released one-liners for science that time. So I have read it very meticulously and it's very helpful for the revision thing. And I have also revised multiple times the content of the Lucent and it has helped me in many ways. Then for the science, I basically chose the reading NCERTs very meticulously, because even in this I also gave 68th prelims examination, and in the 69th also you will see that there were direct questions repeated from the lines of NCERT science especially. For the BPSC examination, there are several videos, but for the strategy part, I have very much streamlined myself. So I prepared myself that I have to first study घटना चक्र बहुत ही अच्छे तरीके से. तो उसके बाद फिर जब घटना चक्र I read once, तो it is a very bulky book and it's really difficult to grasp everything. So I repeatedly revised, made one word notes out of it, followed one liners given by IAS PCS Pathshala. So it was very helpful. For the current affairs also, I relied on 2-3 sources. I have referred to Perfection IAS current affairs material. Then I have skimmed through Edutaria's 750 questions, which comes with the magazine, and also the Speedy magazine I have covered very meticulously. Now for the prelims part, my strategy was that I have to, for the 67 there was no negative marking, so it was naturally that I have to attempt all the questions. But there was one thing which was there in my mind, that I do not have to make mistakes in the easy questions or the questions which are directly repeated from the PYQs or directly from the themes of the PYQs. So when you will see PYQs for the first and the second time, you will only be solving questions and you will only be understanding the questions and answers and everything. But when you read it for multiple times, when you keep reading the questions of the PYQs, you will understand the where exactly is the theme and how they repeat the questions from that themes. And I believe that वो analysis आप खुद ही कर सकते हो. There is no one who can do it exactly like you do. और आपका हर टॉपिक में हर बच्चे का एक अलग स्ट्रेंथ होता है ना, अलग वीकनेस होता है. तो आप जब PYQ बनाओ तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपका ओके, सो साइंस इज़ योर स्ट्रेंथ, तो आप साइंस में भी एक पर्टिकुलर टॉपिक आपका स्ट्रेंथ होगा, तो वो टॉपिक से आपका मिस्टेक नहीं होना चाहिए. हिस्ट्री है तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है दैट इट विल कीप रिपीटिंग, वो आपका मिस्टेक नहीं होना चाहिए. से फॉर एग्जाम्पल विजयनगर एम्पायर है, चोला एम्पायर है, दे कीप आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम दैट, तो आपका वो मिस्टेक नहीं होना चाहिए. यू हैव टू बी very careful when you are doing this.
फिर करंट अफेयर्स में होता है ऐसा है कि नो मैटर हाउ मेनी रिसोर्सेज यू कवर, अब ऐसा नहीं है कि आप सारे क्वेश्चंस सही कर लोगे, बट येस द क्वेश्चंस विच आर कमिंग फ्रॉम द स्टैंडर्ड सोर्सेज आपका सही होना चाहिए. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ जब when I gave 67th prelims examination, that was my first attempt, and I streamlined my preparation to Ghatna Chakra, Lucent, NCRTs of science specially, and the current affairs part. But when I gave 68th examination, I also cleared 68th. I have given 68 mains, and I have also cleared a 69th prelims this time. So for now, if you have to clear the prelims examination, you have to be thorough with NCRTs of science specially, and there were also questions directly from the NCRTs of history as well. But still, I would suggest that you must study Ghatna Chakra, because that is again one important source which becomes very important. And for the geography part also, you must read NCRTs now for clearing the 70th BPSC examination. But one thing was my strategy in the 68th and 78th prelims was कि आई हैव टू कुछ ऐसे टेस्ट करके, एंड आफ्टर एनालाइजिंग माई सेल्फ कि मेरा ऑब्जेक्टिव पार्ट कितना स्ट्रॉन्ग है एंड एवरीथिंग, आई मेड माई माइंड दैट आई हैव टू अटेम्प्ट मैक्सिमम क्वेश्चंस. तो मेरा ये रहता था कि इवन फॉर द 68th एंड 69th आई हैव अटेम्प्टेड 135 प्लस क्वेश्चंस, बिकॉज आई न्यू कि अगर 135, अभी कंपटीशन इतना बढ़ गया है, अगर आप ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करोगे और आपका एक्यूरेसी एवरेज ही जाएगा, आप कितना भी पढ़ लो, यू कैन नॉट बी 100% एक्यूरेट. वो 80% के अराउंड ही आपका एक्यूरेसी रहेगा, 70 to 80% के अराउंड. तो अगर आप अटेम्प्ट नहीं करोगे तो इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट टू गेट इनटू द लिस्ट. तो माई स्ट्रैटेजी वॉज लाइक वेरी मच कि आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट्स लेना है, और आपको जो भी ईजी क्वेश्चंस है, जो रिपीटेड क्वेश्चंस है या रिपीटेड थीम्स है, उसमें थोड़ा भी मिस्टेक नहीं करना है. सो दैट वॉज इट फॉर द प्रीलिम्स पार्ट. नाउ अगेन प्रीलिम्स हैज़ बिकम रियली ट्रिकी एंड इट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. वो प्रैक्टिस भी क्वेश्चंस का जो होता है ना, वो घटना चक्र ही कराता है. कि देर इज़ दिस थिंग कि इफ़ यू आर सीइंग द क्वेश्चन, तो आपको एक अंदाज़ लगता है कि इसका आंसर ये होना चाहिए. दैट अंदाज़ वो व्हेन आई स्टार्टेड द प्रिपरेशन, तो वो अपने आप से नहीं होता है. That needs a lot of practice. When I was giving 67th, उसके बाद I gave 68, फिर I gave 69, तो I saw कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने से I was improving. तो वो चीज़ था. Now coming to the mains part. So I had just 2 months for the preparation, and I joined for the answer writing. I was religiously following the civils platform. वहाँ पे था कि आई स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैच, लाइक आई वॉज नॉट इवन अंडरस्टैंडिंग कि स्पेसिंग कैसे करना है आंसर्स में, एंड हाउ टू अलाइन द आंसर्स एंड स्ट्रक्चरिंग पार्ट. बट मेरा एक स्ट्रेंथ था दैट आफ्टर प्रीलिम्स आई रेड द कंटेंट बहुत अच्छे से, मतलब माई कंटेंट पार्ट वॉज वेरी गुड मोर और लेस, एंड आई वॉज वेरी एप्ट विद डेटा एंड एवरीथिंग. मगर थोड़ा इफ आई फेस्ड वन प्रॉब्लम वॉज कि I knew how to address the demand of the question, but I was not able to write an appropriate introduction and conclusion to the answers. तो उसमें what I used to do कि I used to take questions from PYQs, and then I used to brainstorm in my mind कि ये question है, इसको 1 minute में introduction क्या होगा and conclusion क्या होगा, because I knew कि मेरा content part तो strong है, I can do it. उसके बाद for the answers I wrote 4-5 answers. I started with writing 2 answers every day, but then gradually it moved on to 4-5 answers. But I wrote less answers, but I used to brainstorm a lot of questions in a day, like 10 to 12 questions I used to brainstorm. Now suppose if I've written one answer, and there are a peer group and there are my peer group, and everybody is evaluating each other answers and everything. And suppose I have got less marks in one test, or say for example I have got certain remarks that I have not addressed the demand of the question, or I have got less marks in a certain question. So I will sit with myself for 1 hour, and then I used to realize that how others have written, and how it's not, and how my answer is not better than them. So that was my thing. And I suppose sir gave any remark,
So I was very carefully trying to understand कि whether I can adjust myself to that remark or not, because हर बच्चे का एक strength होता है of answer writing. आपका content हो सकता है, किसी का data हो सकता है, किसी का structuring and presentation content होता है. तो mine presentation कभी भी strength नहीं था, although with बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस माई प्रेजेंटेशन ऑफ द आंसर इम्प्रूव, बट मेरे को पता था कि मेरा कंटेंट अच्छा है, इट इज़ माई स्ट्रेंथ. तो आई यूज टू वर्क ऑन दैट. अगर मेरे को लगता था कि somebody in the group is writing a better content than me, then I used to read more, and then I used to do the value addition part. But then there were certain students who were doing definitely a much better presentation than me, but I knew that I could not reach to that level, और time भी बहुत कम था. तो I focused on an average presentation of the answers. But मेरा एक चीज़ था, when I was giving the mains examination also, my friends who were preparing for the exam, they told me कि you always have to address the demand of the question, कि आप ज़्यादा मत घबराओ अगर तुम्हारा presentation अच्छा नहीं हो रहा है तो when I was sitting in the examination hall also, there was this only one thing in my mind कि बस demand को address करना है questions में, एंड अपना आंसर्स जो है, पूरा पेपर जो है, वो आपको टाइम लिमिट में फिनिश करना है. सो दैट वाज माय थिंग. कमिंग टू द ऑप्शनल पार्ट, तो अब तो ऑप्शनल रहा नहीं फॉर द बीपीएससी, but still I used to write a lot of answers in optional also, and I think I was paid for my hard work. I have got 207 marks in sociology. So I enjoyed reading sociology, and so it worked for me. मगर आपका कोई भी ऑप्शनल है, बट अगेन अब तो ऑप्शनल रहा नहीं. वी विल टॉक अबाउट द essay paper which I have attempted in the 68, but the marks are not out, so I don't know, I may be the right person to suggest about essay or not. But for the essay also, I have referred to the strategies of IAS PCS Pathshala channel, and for 68 mains also I was enrolled in the civils batch, and I have referred to the materials of the Perfection IAS, which I find is very good, really nice material. So that was it. And coming to the interview part, so in the interview I would like to say that it's not important that you should not go with any preconceived notion कि आपसे वो लोग सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन तो एक पूछ ही लेंगे, एक ग्रेजुएशन पूछ लेंगे, एक ऑप्शनल पूछ लेंगे, एंड अगर आप जॉब में हो तो वो पूछ लेंगे. ऐसा नहीं होता है. And because when I went for the interview, mine is an agriculture background, like I am an agriculture graduate. So they asked me 10 questions, and those 10 questions were straight from agriculture. And there is this notion that आपसे application based question पूछेंगे graduation का या ऐसा कुछ, but it was not the case with me. They asked me very technical questions from agriculture as well. तो ऐसा, and I was able to answer 7 questions out of 10 only, but I have not got a very good marks in the interview. It's only 78 that I have got. In the mains part, I have got total 560 marks. So coming back to the interview part, it was only 10 days after the prelims that I prepared for the interview. Interview में आप कितना भी prepare करो, but what is essential is how you are delivering your answers. तो मेरा हमेशा से था कि आई कीप प्रैक्टिसिंग हाउ आई एम डिलीवरिंग एंड हाउ आई एम प्रेजेंटिंग माई सेल्फ एंड माई बॉडी लैंग्वेज एंड एवरीथिंग. apart from the strategies, like I believe one thing, that all of us are doing more or less the same amount of hard work, and more or less all of us are focused. बट थोड़ा अगर कुछ डिफरेंस होता है तो वो थोड़ा स्ट्रैटेजी का होता है, दैट इज़ वन थिंग. बट स्ट्रैटेजी भी मोर और लेस सबका सही होता है, मगर होता है एग्ज़ाम में आप कितना अपने टेम्परामेंट को मेंटेन कर सकते हो और अपने एंजाइटी को कितना रेगुलेट कर सकते हो. क्योंकि देर आर मैनी थिंग्स गोइंग इन द मार्केट. कि जब व्हेन आई वाज गिविंग माय 67th एग्ज़ाम, तो वहाँ पे मेरे को ऐसा लगा कि आई मेड अ मिस्टेक इन द डेटा इंटरप्रिटेशन पार्ट, जो मेंस में होता है. सो देयर वाज दिस एनवायरनमेंट कि अब डेटा इंटरप्रिटेशन गलत हो गया तो अब तो सिलेक्शन ही नहीं होगा. जब 7 days ऑप्शनल का था तो एवरीवन अराउंड मी, बहुत लोगों का DI में गलती हुआ था उस टाइम पे. तो पीपल वर लाइक कि अब तो कोई फ़ायदा नहीं है ऑप्शनल भी पढ़ के, बिकॉज वी हैव मेस्ड विद द DI थिंग. बट आई वॉज डिटरमिन्ड कि नहीं. माई फादर यूज्ड टू से कि यू हैव टू फाइट टिल द लास्ट मोमेंट. आई केप्ट दैट थिंग इन माइंड
कि 7 days है, आई हैव टू कन्वर्ट द मिस्टेक ऑफ माई GS1 पार्ट इन द ऑप्शनल थिंग। तो आपका ऐसा टेम्परामेंट होना चाहिए, एंड दैट इज़ हेल्प्ड मी। आपका ऐसा टेम्परामेंट होना चाहिए कि आप लास्ट मोमेंट तक यू आर स्टिकिंग टू योर स्ट्रैटेजी, यू आर स्टिकिंग टू योर सेल्फ एंड यू आर बिलीविंग इन योर सेल्फ। कि माइन वॉज एग्रीकल्चर ऑप्शनल, mine was I'm an agriculture graduate, so there were many people who suggested कि you should take agriculture, but I was never fearful of the fact that what others are saying, क्योंकि इस preparation में क्या होता है, the moment you are in the journey there are people who are advising you, there are so many and they are your well wishers, everybody want that you crack the examination, but you have to find for yourself कि आपको कौन सा एक पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल है जो आपके नीड के हिसाब से बातें कर रहा है और जो आपके प्रॉब्लम्स को सूट कर रहा है। बिकॉज देर आर डिफरेंट चैनल्स, देर आर डिफरेंट सोर्सेज, बट वो सारे लोग आपके दिमाग और आपके स्ट्रैटेजी और आपके स्ट्रेंथ या वीकनेस से बात नहीं कर रहे हैं। सो यू हैव टू डिस्कवर दैट फॉर योर सेल्फ। फॉर मी आई हैड डिस्कवर्ड कि मेरा बहुत स्ट्रीम लाइन रहता था, दैट आई वॉज नॉट वॉचिंग टू मेनी यूट्यूब चैनल्स, आई वॉज नॉट वॉचिंग टू मेनी स्ट्रैटेजी वीडियोज़। वो प्रिपरेशन के टाइम से ही माई फ्रेंड इंट्रोड्यूस्ड मी टू IAS PCH पाठशाला, सो आई वॉज फॉलोइंग दैट बहुत रिलीजियसली। बट फिर बाद में सर का कुछ वीडियोज़ UPSC के लिए रहता था, तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि हमको देखना है, आई हैव टू प्रिपेयर फॉर UPSC, बट आई वॉज फोकस्ड कि अभी आई हैव टू प्रिपेयर फॉर BPSC, तो अभी आई शुड वॉच द वीडियोज़ ऑफ BPSC ओनली, अभी तो इट विल नॉट हेल्प मी। तो आपको इतना फोकस्ड होना होगा व्हेन यू आर फॉलोइंग यूट्यूब फॉर स्टडिंग, कि आप ऐसा नहीं है कि सम कंटेंट विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू लेटर ऑन ऑल्सो आप देख रहे हो एंड यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड एवरीथिंग। सेम फॉर द आंसर राइटिंग थिंग ऑल्सो, कि आई वॉज एनरोल्ड विद द सिविल्स बैच, सो वहाँ पे भी था कि आप सर वॉज डूइंग अ लॉट ऑफ वैल्यू एडिशन एवरीथिंग, बट देयर आर सो मेनी मटीरियल, सो मेनी कॉमेंट्स, सो मेनी रिमार्क्स ऑन योर आंसर्स, बट इट इज़ अप टू यू कि आपको कौन सा रिमार्क लेना है, कौन सा नहीं लेना है, एंड हाउ यू हैव टू प्रेजेंट योर सेल्फ इन द एग्जाम। एंड सो आई वुड सजेस्ट दैट आप प्रिपेयर करो, आप हर दिन पढ़ो, बट यू शुड सिट विथ योर सेल्फ इन द प्रिपरेशन फॉर हाफ एन आवर एटलीस्ट एंड एनालाइज कि आपका कहाँ स्ट्रैटेजी गलत जा रहा है, कहाँ सही जा रहा है। बिकॉज स्ट्रैटेजी को बहुत ज़्यादा रिजिड भी नहीं रखना चाहिए और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं रखना चाहिए। यू शुड ऑलवेज रीविजिट योर स्ट्रैटेजी। रिवाइज तो आपको सिलेबस को करना है, मगर स्ट्रैटेजी को भी बार बार रीविजिट करना है कि अगर बहुत सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते मेरा कोई पर्टिकुलर चीज़ स्ट्रॉन्ग हो गया, तो अब हम वीक वाले चीज़ पे ध्यान देंगे। सो दैट वॉज द थिंग for the thing. Now I would talk about mental health. क्या होता है इस preparation में, when I was not preparing for the examination, my friends were preparing for the examination, so I was not understanding actually कि 6-8 घंटे तो पढ़ ही सकते वाला चीज़ होता था with me कि I can study, but when I came into the exam preparation thing, तो I understood कि it's not important कि आप हर दिन इतना पढ़ ही लो। बट मेरा भी ऐसा होता था कि देयर वर डेज व्हेन आई वाज नॉट एबल टू स्टडी, देयर वर डेज जब मेरा प्रीलिम्स हो भी रहा है, मेंस हो भी रहा है, नेक्स्ट प्रीलिम्स निकल रहा है, बट आई वाज एक एंजाइटी होता था बहुत ज़्यादा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। देयर वर डेज व्हेन आई वाज सिटिंग इन द चेयर एंड द टीयर्स आर रोलिंग डाउन एंड यू कैन नॉट एक्सप्लेन योर सिचुएशन टू एनीबडी। वो कोई भी इंसान है, आप नो मैटर हाउ मच क्लोज यू आर विद दैट पर्सन, यू कैन नॉट एग्जैक्टली एक्सप्लेन योर सिचुएशन टू द अदर पर्सन। बट आई वुड से कि अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, यू आर वरीड, यू आर स्ट्रेस्ड, जस्ट सिट विद योर सेल्फ एंड टॉक टू योर सेल्फ कि इट इज़ जस्ट अ फेज एंड यू कैन सेल ओवर इट विद फ्लाइंग कलर्स। मेरे दिमाग में होता था कि आई विल डू इट, ज़्यादा मतलब ऐसा सोचना नहीं है। अगर हमको डिसअपॉइंटमेंट्स हो रहा है, इफ़ आई एम वरीड, तो लेट मी एक्सेप्ट दैट थिंग कि बहुत इस प्रिपरेशन में आपको बहुत एक्सेप्टेंस मोड में रहना होता है कि कोई नहीं, इफ़ इट इज़ प्रीलिम्स रिजल्ट, आपका प्रीलिम्स हो गया, देन मेंस का एंजाइटी होगा कि अब 2 महीने हैं, हाउ यू विल प्रिपेयर फॉर मेंस एग्जाम एंड एवरीथिंग। सो आई वुड से दैट व्हेन यू एंटर दिस एग्जामिनेशन, ये प्रिपरेशन फेज़ में, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि आप डिसअपॉइंटमेंट्स भी ले पाओ, आप रिज़ल्ट का वो प्रीलिम्स में जो खुशी होता है कि चलो प्रीलिम्स तो निकला मगर अब मेंस का एंजाइटी है, उन दोनों को आप बैलेंस कर पाओ, एंड फाइनल रिज़ल्ट हो नहीं हो उसका डिसअपॉइंटमेंट या खुशी वो आप बहुत तरीके से, बहुत एक्सेप्टेंस मोड में लो। बिकॉज ये प्रिपरेशन में आई थिंक
that you have to sacrifice many things. When there are people who can play and who can watch TV, web series, enjoy with friends and still crack the examination. But for me, मेरा ऐसा होता था कि आई वॉज वेरी मच फोकस्ड कि आई वॉज नॉट स्पीकिंग टू मैनी पीपल, क्योंकि बहुत लोगों से ऐसा नहीं कि आपके पास टाइम नहीं होता एंड यू कैन नॉट टॉक टू योर फ्रेंड्स, बहुत टाइम होता है. वी आर नॉट स्टडिंग 24 आवर्स एंड वी आर नॉट स्लीपिंग ऑल्सो बहुत ज़्यादा ड्यू टू टेंशन एंड एवरीथिंग. बट अगर आप बात करोगे तो आपको मेरे साथ ऐसा होता था कि इफ आई एम स्पीकिंग तो मेरे को लगता था कि व्हाट एम आई डूइंग इन लाइफ, हाउ अदर्स आर डूइंग, एंड 10 तरह की बातें आपके दिमाग में चलने लगती है कि दिस दैट. तो आई यूज टू कीप माई सेल्फ अवे फ्रॉम एवरीबडी. लाइक आई वॉज बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड इन द प्रिपरेशन. आई हैड ओनली फ्यू पीपल ऑन माई फिंगर्स जिन पे आई कुड काउंट एंड आई कुड ट्रस्ट. माई फ्रेंड्स हु वर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, दे हैव हेल्प्ड मी लाइक एनीथिंग in restoring my mental capacity and pushing me. तो वो बहुत मेरे दिमाग में था कि आई हैव टू, मेरे को डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है इन द प्रिपरेशन, क्योंकि पढ़ाई मेरे को लगता था कि मोर और लेस आई विल डू, मगर डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए और स्ट्रैटेजी सही जाना चाहिए. तो वो चीज़ था मेरा. उसके बाद वन वेरी कॉमन क्वेश्चन दैट वेदर हाउ मेनी आवर्स आई यूज टू स्टडी. तो ऑल ऑफ यू नो दैट कोई फिक्स्ड आवर्स नहीं होता है. बट आई वुड से व्हेन आई स्टार्टेड द प्रिपरेशन आई स्टडीड बहुत ज़्यादा. मेरे को ऐसा, बिकॉज 3 months था फॉर द प्रीलिम्स, तो था कि आई हैव टू कंप्लीट एनी हाउ, हैव टू, मेरा टारगेट होता था कि आज घटना चक्र इतना करना है. तो उसमें आई वॉज वेरी रिजिड. मगर जब धीरे धीरे प्रिपरेशन का टाइम बढ़ता गया तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप उतना रिजिड टाइमलाइंस फॉलो कर पाओ. तो मेरा कभी कभी स्लो डाउन भी हो जाता था. बट जब भी स्लो डाउन भी होता था, इवन देयर वर डेज व्हेन आई वाज नॉट वेल एंड आई एम लाइंग ऑन द बेड, तो भी आई यूज्ड टू ब्रेन स्टॉर्म मेनी थिंग्स. आई थिंक टू सम एक्सटेंट वो हेल्प किया है कि इवन इफ आई एम नॉट रीडिंग एनीथिंग, देयर आर थिंग्स रनिंग इन माई माइंड कि आई हैव टू कंप्लीट GS1 ऐसे, आई हैव टू कंप्लीट GS2 ऐसे. तो यू हैव टू लिव विद द प्रोसेस, कि आपको इस प्रोसेस को एंजॉय करना है. एंड आप यू हैव टू, मेरे दिमाग में ऐसा होता था कि आई यूज टू थिंक कि अगर वाई आई एम इनटू द प्रिपरेशन तो ठीक है, एवरीबडी हैज़ गॉट सम और द अदर काइंड ऑफ मोटिवेशन. बट एवरी डे में मेरा एक होता था कि इफ़ आई वॉज नॉट स्टडिंग एंड इफ़ आई वॉज नॉट इनटू द प्रिपरेशन, अभी हम क्या ही करते रहते. I would be speaking to my friends, or I would be going for the job, coming back and then partying around and everything. Magar I am into the preparation, so I'm able to learn so many things, and there are so many things on everyday basis that I'm learning. तो वो भी एक मेरा एक मेजर पुश रहा है. ना यूज टू टेल टू माई फ्रेंड ऑल्सो कि देखो हम तैयारी कर रहे हैं, तो आई हैव लर्न सो मेनी थिंग्स कि अब जब यू आर डिस्कसिंग थिंग्स विथ मी, आई एम एबल टू गिव यू गुड पॉइंट्स. तो वो एक मेरे लिए पर एवरी डे का मोटिवेशन होता था. एंड फॉर द लार्जर पार्ट आई हैड टू डू सम, मेरे दिमाग में था कि आई हैव टू डू समथिंग फॉर माई फादर एंड आई हैव टू डेडिकेट दिस सक्सेस टू माई फादर, जो सभी बच्चों का होता है. ऑल ऑफ वी आर वेरी मच ग्रेटफुल टू आवर पेरेंट्स. All of you are very much grateful to your parents for giving you this opportunity, and so am I. There is nothing new that I said or I wanted to do. तो फिर और एक चीज़ होता है कि you suppose I'm saying something, मेरा आज एग्ज़ाम हो गया, that makes me that does not make me अचानक से very right about something. तो if I'm saying something, I'm just telling you my journey so that you are able to relate to things. बाकी prelims का sources क्या होगा, मेंस कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है वाला चीज़ आपको कोई भी बता सकता है, या फिर आप अभी तक खुद भी अपने से एक एनालाइज करके एक अपने पेपर पे लिख लिए होंगे, एंड विच इज़ मोर और लेस वेरी राइट थिंग. बट आई वुड से कि आपको डिसिप्लिन बहुत बरकरार रखना है इस पूरे जर्नी में. यू हैव टू बी वेरी 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 डिसिप्लिन. आई वॉज ऑल्सो नॉट, बट दिस टाइम व्हेन आई केम इनटू द प्रिपरेशन मेरा श्योर था कि आई विल बी वेरी डिसिप्लिन. उसके बाद है आपको कंसिस्टेंट रहना है, विच एवरीबडी सेज एंड विच इज़ वेरी ट्रू. एंड यू हैव टू रीविजिट योर स्ट्रैटेजी एंड जस्ट कार्व आउट फॉर योर सेल्फ कि आपको किस सोर्स को फॉलो करना है, किस चैनल को फॉलो करना है, किस कोचिंग में एनरोल करना है. ये सब आपका पहले से रेडी होना चाहिए. एंड वो बार बार यू शुड नॉट चेंज दोज थिंग्स कि आप बार बार उसको बदल रहे हो, वो चीज़ नहीं होना चाहिए. फॉर मी, आई हैव रिलाइड इन दिस जर्नी ऑन 2-3 of my friends. तो उनसे भी आई यूज टू टेक
लिमिटेड अमाउंट ऑफ इनपुट, जो मेरे को लगता था कि इट विल हेल्प मी, या जो मेरे हिसाब से जो इनपुट रहता था दैट आई यूज टू टेक. तो आपको बेसिकली बहुत स्मार्ट रहना होगा इन दिस एरा वेयर देयर इज सो मच ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्लोटिंग अराउंड एंड ऑल ऑफ अस आर स्टडिंग फ्रॉम मोर और लेस द सेम प्लेटफॉर्म or more or less the same source of material. So that's all from my side. Thank you very much.